प्रेज द लॉर्ड चर्च, यीशु मसीह के नाम में आप सबका ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। और गॉड इज़ गुड, परमेश्वर भला है। इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर भला है, क्योंकि दुकानें बंद है, मॉल्स बंद है। आप सोचिए, परमेश्वर हमारे खर्चे को बचा रहा है। रेस्टोरेंट्स बंद है, लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन दे रहा है। और जिम बंद है, इससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज दे रहा है परमेश्वर, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे रहा है। तो चाहे हो कोरोना, ना हो कोरोना, गो कोरोना, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करो ना, क्योंकि वो भला है। गॉड इज़ गुड। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम इस समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप इस ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए भी हमसे आज बात करना चाह रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके वचन के लिए परमेश्वर। इसके ज़रिए आज हमें आप कुछ कहना चाहते हैं परमेश्वर, हमको छूना चाहते हैं। हम मांगते हैं इस वक्त परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से आप भर दे परमेश्वर, ताकि हम आपके और करीब आ सके, आपको और जान सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं फिर एक बार हमारे पूरे कलीसिया के लिए परमेश्वर। आपने हम सबको सुरक्षित रखा है, अपने लहू से आपने हमको शुद्ध किया है और सुरक्षित रखा है। आपके प्यार के लिए परमेश्वर, आपकी शांति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये पूरी सभा को आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. We welcome you in our online service of Oshivara Church. Let us all together worship the King of Kings and the Lord of Lords, for He deserves all glory and honor. Amen. हालेलुया। आइए उसके नाम को हम ऊंचा करते हैं, मैं क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है।
not forget to raise a hallelujah to the one who created us, to the one who has kept us so safe in his refuge. Amen. Let all of us raise a hallelujah to him. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is the melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me, and I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear our praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I've been washed in darkness clean. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear lost your hold on me, and I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Yes, Lord. You are alive, Lord. Yes, Jesus. You are alive in this time, Lord. Yes, Lord. And our heart worship you, Jesus. Yes, Jesus. And we sing hallelujah, Lord. Yes, We sing Lord. hallelujah to you, Lord. Yes, Jesus. Sing little In louder. the presence of my enemies, Sing little louder. louder than the unbelief. Sing little louder. My weapon is a melody. Sing little louder. Heaven comes to One fight more for time. me. Sing little louder. In the presence of my enemies, Sing little louder. louder than the unbelief. Sing little louder. My weapon is a melody. Sing little louder. Heaven comes to One more fight time. for me. Sing little louder. And I'm gonna sing In the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear our praises roar up from the ashes. hope will arise. Death is defeated. The King is alive. One more time. I'm gonna sing In the middle of the yes, storm, Lord. Louder and louder. You're gonna hear our praises roar up from the ashes. hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Yes, Lord, you are alive, Lord. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. मैं आइए आप पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करें कि वही हमारा राजा है, वही हमारा प्रभु है, वही है जो हम पर दया करता है, वही है जो हम पर करुणा करता है। मैं आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा
प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु हम सब पर परमेश्वर तेरी कृपा तेरी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे और हमेशा बनी रहेगी परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते कि इस समय परमेश्वर तू अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी सेवकाई कर परमेश्वर, हमें प्रभु तेरे वचन में आगे बढ़ने के लिए मदद करो परमेश्वर। हम मांगते प्रभु कि हम आपके वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, हम आपके राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर भूखे और प्यासे हैं प्रभु। और प्रभु सिर्फ तू ही है परमेश्वर जो हमारी भूख और प्यास को मिटा सकता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, हमारे सारे कलीसिया को हम आपके हाथ में देते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, हर एक फैमिली के ऊपर परमेश्वर आपका रक्षा का हाथ बना रहे परमेश्वर। आप उनके ऊपर परमेश्वर हमेशा अपनी दया को बरसाओगे प्रभु, उनकी देखभाल करोगे और परमेश्वर उनकी जो भी जरूरत है परमेश्वर वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है प्रभु। उन सारी जरूरतों को परमेश्वर आपके महिमा के अनुसार, आपके परमेश्वर सामर्थ के अनुसार प्रभु आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करो परमेश्वर। और ये परमेश्वर जितने भी लोग देख रहे प्रभु उन सबको आप आशीषित करो, अपनी शांति से भर दो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु इस सभा को परमेश्वर, इस दिन को हम आपके हाथ में देते, आपके नाम को महिमा आदर मिले परमेश्वर। जैसे हमने आपकी स्तुति आराधना की, आपने हमारी स्तुति आराधना को कबूल किया, हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारी सारी प्रार्थना को आपने उत्तर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते। ऐसी प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। We are glad that you are able to join us this Sunday. हमें खुशी है इस रविवार के दिन आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं। हम इस परिस्थिति में कुछ समय से हैं और जिसकी अपेक्षा हम में से किसी ने नहीं की थी। We are in this situation for some time now and we had not anticipated, but we know the effects are going to be lasting for a long time. हम जानते हैं कि इसके प्रभाव आने वाले लंबे समय तक हम जो है महसूस करते रहेंगे। And so let us prepare ourselves. हम अपने मनों की तैयारी कर लें कि हम आने वाले समय तक हम जो है कैसे अपने आप को हम चला सकते हैं। We are all being tested. हम सबकी परीक्षा हो रही है और परीक्षा जब होती है तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। Whenever we are being tested, it doesn't feel good while it lasts. You know, our lot of activities have come to a stop and maybe we are feeling stuck in the situation. बहुत सारी activities हमारे जीवन की रुक गई हैं। हो सकता है हमें ऐसे लग रहा है कि मानो हमारा जीवन कहीं रुक सा गया, अटक सा गया है। हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव हो गए हैं और सच में हम सबके लिए ये एक कठिन समय है। It is a difficult time for all of us. But I believe that some months or some years down the line, when we will look back and think about this time, we will be able to thank God because God is going to work everything for good. मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर इस समय के बारे में सोचेंगे तो सच में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि सच में इसमें से परमेश्वर कुछ भलाई को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। और होने दे कि इस समय में से हमारे अंदर से बेस्ट बाहर निकल कर आए। हमारे आसपास भी हम काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं। हम देख रहे हैं पर्यावरण में बहुत बदलाव हुए हैं। हमारा शहर फिर से खूबसूरत दिखने लगा है। वो सुंदरता जो कहीं खो गई थी वो जैसे मानो वापस लौटने लगी है। हो सकता है हमारे जीवन की भी बहुत सी अच्छी बातें कहीं खो गई थी। मे बी मेनी गुड थिंग्स इन आवर लाइव्स हैड got lost somewhere, maybe due to the busyness or the stress or the pressures of life. So may it be that this lockdown may unlock the best in each one of us. होने दो कि इस लॉकडाउन के द्वारा हम सब के अंदर की उत्तम बातें अनलॉक हो जाएं, खुलकर बाहर आ जाएं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। God is with us and He is leading us in victory. हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है और वो हमारे आगे आगे चलता है। This is a global corona virus battle. ये जो कोरोना वायरस का जो युद्ध है पूरा विश्व इससे आज जूझ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि और एक युद्ध है जिससे पूरी मानव जाति जूझती है और वो है पापी स्वभाव, हमारे अंदर का पाप। There is another great battle that every person on this earth battles, and that is the sinful nature. And Jesus Christ, He gave His supreme sacrifice and He won the victory for each one of us. और यीशु मसीह ने वो कीमत चुकाई, अपना बलिदान दिया और हम सबको उस पर विजय दी है।
परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता लेकिन अनंत जीवन पाता है। He has given us this promise of eternal life and he never backs out on his promise. परमेश्वर अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता है। तो हमें चुना गया है, हमें प्रभु ने चुना है एक जयवंत जीवन जीने के लिए। एक दिन के लिए विजयी जीवन जीना तो आसान है, लेकिन मसीह ने हमें चुना है ताकि हम आजीवन एक विजेता का जीवन जी सके। He has chosen us to live a lifetime of victory. So today, let us learn about abiding victory. आज हम सीखेंगे स्थायी जय के बारे में, जो हमेशा के लिए विजेता बनकर जीने के बारे में। हमारे आसपास की दुनिया जो है बदल रही है और हमें भी उसके साथ बदलते जाना है। 3 कदम मैं बताना चाहती हूँ विजय के लिए, आजीवन जो है विजेता बनकर जीने के लिए। 3 steps to a lifetime of victory. The first one is think victorious. पहला है जयवंत के जैसे सोचो। It is impossible to live in victory without a victorious concept. बिना एक विजयी, एक जयवंत की सोच रखे बिना हम एक विजयी जीवन नहीं जी सकते। विजयी जीवन एक सही सोच का परिणाम है। जैसी सोच हम रखते हैं वैसा ही फल हम पाते हैं। 1 Corinthians chapter 15 and verse 57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. पहला कोरिन्थियों 15 का 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अगर हम पराजय के विचार सोचेंगे तो कभी भी जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। If we think thoughts of failure, then we will never win. Refuse to have a defeatist mentality. एक पराजय की सोच रखने से इनकार कर दीजिए। यदि हम हारी हुई सोच रखेंगे तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच, हमारा मन जय और आशा की ओर लगाकर रखेंगे तो हम हमेशा जयवंत होंगे। Romans 15:13 says, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. रोमियो 15:13 में लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हमारी आशा बढ़ती जाए। We will overflow with hope. So think victorious. जयवंत के जैसे सोचो। दूसरी बात हम देखते हैं, the second thing, focus on the promise. वादे पर दृष्टि लगाओ। When challenges come, our focus easily shifts on to the problem, but get your eyes away from the circumstance. जब परिस्थिति मुश्किल आती है तो आसानी से हमारी दृष्टि जो है समस्या के ऊपर चली जाती है, लेकिन हमें उस समस्या से अपनी दृष्टि को हटाना है। हम देखते हैं यूहन्ना 5वें अध्याय में, जॉन चैप्टर 5, there was a lame man who was sick for 38 years. 38 साल से ये व्यक्ति बीमार था, लंगड़ा था और वो यरूशलेम में बेथेस्दा के कुंड के पास पड़ा हुआ था। वहां पर जब वो था तो एक बार जब यीशु मसीह वहां पर गए तो यीशु मसीह ने उसको देखकर उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? One day when Jesus passed by that side, he saw this lame man. He asked him, do you want to be healed? This man, but he was focused on his circumstance. इस लंगड़े की दृष्टि तो उसके परिस्थिति, उसकी समस्या पर लगी हुई थी। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतारे। उस समय ऐसा था कि जब कुंड का पानी हिलता था तो जो व्यक्ति पहले पानी में उतर जाता था वो चंगाई को पाता था। और इसने सोचा कि मेरे पास तो कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए, तो मैं कैसे चंगाई को पा सकता हूँ। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कौन उसे पूछ रहा है। He failed to see the one who was asking him. Rather, his eyes were on his problem, on his circumstance. Beloved, get your eyes away from the circumstance and get your eyes on the promise. He is a way maker, miracle worker, promise keeper. प्यारो, अपनी दृष्टि अपनी समस्या से हटाकर यीशु के ऊपर लगाओ, क्योंकि वो मार्ग निकालने वाला, वो चमत्कार करने वाला, वो अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हाँ, परिस्थिति मुश्किल है और
परिस्थिति मुश्किल होने पर हमारी आंखें उस पर जाती हैं, लेकिन हमारे हाथ में चुनाव है। हाँ, आज इस परिस्थिति में कईयों के मन में आने वाले भविष्य को लेकर डर है या चिंता है। कईयों की नौकरी चली गई है। कई लोग सोचते हैं कि अरे हम तो लॉकडाउन के समय से हम घर पर ही हैं, या हमें हमारी पगार नहीं मिल रही है, या हमें हमारे भविष्य के लिए बचा कर रखना है। we are thinking, we are uncertain about the future, and we are thinking, oh, I need to save for my future. But Jesus is waiting with his arms open to bless us abundantly. यीशु मसीह रुका है अपनी बाहें खोलकर हमें बहुतायत की आशीष देने के लिए, लेकिन हम हैं कि हम जो है सिर्फ हमारी परिस्थिति को देख रहे हैं. We are holding on. Jesus, I can't give my tithes, I can't give my offering, I have only this much, I cannot give. Instead of the promise, we are looking at the problem. हम सोच रहे हैं कि नहीं, इस समय मैं ही तकलीफ में हूँ, पता नहीं आने वाला समय कैसे होगा, तो मैं नहीं दे सकता, मैं अपना दान दशमांश नहीं दे सकता. हम उसको पकड़ के रखे हुए, जबकि यीशु मसीह रुका है अपनी बाहें खोलकर हमें बहुतायत से देने के लिए. प्यारों, आज अगर हमारे पास खाने के लिए भोजन है, तो बीज बोने के लिए भी हमारे पास बीज होना चाहिए. खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज वही देता. He is the one who gives bread to the eater and seed to the sower. Today, if we are able to eat, then we are also able to sow. उससे मांगिए, वो आपको देता है. अपने भविष्य में फसल पाने के लिए बीज बोना जरूरी है. बीज बोए बिना हम फसल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? Without sowing a seed, how can we expect a harvest? So for our future harvest, we need to sow our seed now. Keep your eyes on the promise. He is the God of hope. Hallelujah. वो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है. 2 Corinthians 2:14. Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है. हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं, लेकिन सदा हमें जय के उत्सव में वो लिए फिरता है. फोकस ऑन द प्रॉमिस एंड नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स. अपनी दृष्टि अपनी समस्या पर नहीं, लेकिन उसके वादे पर लगा कर रखो. एंड द थर्ड स्टेप इज डोंट स्टॉप. और तीसरा कदम है, तीसरी सीढ़ी है, रुकना नहीं है. We need to keep growing. रुक जाना मतलब पराजय को स्वीकार कर लेना. Never accept defeat. Keep moving on in God. परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें, पराजय को कभी ना स्वीकारें. जब मुश्किल परिस्थितियां आती है तो हम यही सोचते हैं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे. We don't want to move in stressful times. We are waiting on God, that God you move first. हम ये सोचते हैं कि प्रभु पहले तू कार्य कर. लोग प्रभु की सेवा करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को देना छोड़ देते हैं, दूसरी बातों में व्यस्त हो जाते हैं, और परिणाम ये होता है कि आखिर में परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, परमेश्वर को खोजना ही छोड़ देते हैं. और प्यारों, ये स्थिति बड़ी ही रिस्की है. If we stop serving God, giving to God, and we become busy with other things, eventually we will stop seeking Him. And this is a very risky situation. It's a very risky place to be in. So use your time wisely. अपने समय का जो है बुद्धिमानी से उपयोग कीजिए. प्रभु में बढ़ते जाइए. Don't stop. रुकिए नहीं. The greatest enemy of a victorious life is passivity. इस तरह से निष्क्रिय हो जाना, प्रभु में बढ़ना बंद कर देना, वो सबसे बड़ा शत्रु है विजयी जीवन के लिए. याद रखिए, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है. We don't have to stop. James 4:17 says, if anyone then knows the good they ought to do and does not do it, it is sin for them. याकूब 4:17 में वचन कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है. इस समय प्यारो, समय है प्रभु में बढ़ने का. This is the time to grow in God. Allow God to do His work in you. Let Him change you inside out. This is a good time. ये समय है प्रभु में बढ़ने का. वो हमें अंदर से बदल रहा है.
It's a good time to take off your mask. अपने मास्क को निकालने का समय है। हाँ, इस समय हम जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए हमें मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। It has been made mandatory to wear a mask and we should do that. हमें करना है। हम जानते हैं कि आने वाला समय जो है, आने वाला माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है। जो पहले जैसा हमारा लाइफस्टाइल था वो वैसा नहीं रहने वाला है। तो जैसे स्वाभाविक में होता है वैसे आत्मिक में, as in the natural, so in the spiritual. यीशु मसीह ने कई बार कहानियों के द्वारा लोगों को सिखाया। वो रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण लेता था, कभी खेत का, कभी बीज का, कभी फूलों का, कभी पक्षियों का। तो मैं सोच रही थी कि आज यदि यीशु वो होते तो वो किस चीज का उदाहरण लेकर हमें सिखाते। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि शायद वो मास्क का उदाहरण लेकर हमें सिखाते। मास्क यानी एक मुखौटा, है ना। हम सभी मास्क पहनते हैं और हमें शरीर के लिए इस वक्त मास्क पहनना है, लेकिन प्रभु के सामने हमें मास्क उतार देना है। वो तो सब कुछ देखता है, उसके आगे सब कुछ खुला है। हम मास्क पहनते हैं ढकने के, लेकिन बेहतर होगा कि आत्मिक रीति से परमेश्वर के आगे हम सारे नकाबों को हटाकर सच्चाई में, उजाले में चलें। हालेलुया। हो सकता है हमें महसूस हो रहा है कि हम एक ही तरह के रूटीन में हैं, कई लोगों को डिप्रेस्ड भी फील हो रहा है, लेकिन प्यारो, अगर हम मसीह में हैं तो हमें जो है आजीवन जय में चलने के लिए प्रभु ने बुलाया है। God has called us to walk in abiding victory. जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम यही चाहते हैं ना कि वो चीज लंबे समय तक चले, टिकाऊ रहे। तो ये जो जय है जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है, वो कुछ समय की नहीं है, लेकिन जीवन भर के लिए। It's a lifelong victory that God has given us. So even as we keep doing these things, we will enjoy a lifelong victory. जैसे हम इन बातों को करते रहेंगे तो आजीवन स्थायी रूप से हम विजेता बनकर जिएंगे। और आखिर में रोमियो 8:37, finally Romans chapter 8 verse 37, it says, Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. रोमियो 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आइए कहेंगे, जयवंत से बढ़कर हैं। More than a conqueror. So 3 steps, think victorious. 3 बातें, जयवंत जैसे सोचो, focus on the promise, वादे पर दृष्टि लगाओ, and third, don't stop. और तीसरा है, रुकना नहीं है। विजयी बने रहने के लिए ये सीढ़ियां हम चढ़ते रहेंगे तो हम प्रतिदिन उस जय के उत्सव में चलते रहेंगे। As we follow these steps every day of our lives, we will find that we will walk in a celebration of victory every day. That God will provide every need. परमेश्वर हर जरूरत पूरी करेगा और सभी बातों में हमें स्थायी रूप से विजेता बनाकर हमें चलाए। हालेलुया। So be blessed. आशीषित रहें। We have come before the Lord's table. हम प्रभु की मेज के सम्मुख आए हैं। Let's read from the book of Isaiah 53 verses 3 to 8. आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 3 से 8। He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised and we did not esteem him. वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। Surely he has borne our grief and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripe we are healed. परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी,
कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shears is silent, so he opened not his mouth. वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। He was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living, and the transgression of my people he was stricken. अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। Here prophet Isaiah is talking about Jesus Christ, the Son of God. यहाँ पर यशाया नबी यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके विषय में बात कर रहा है। When Jesus walked on earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला, he was vibrant, वो जोश से भरा हुआ था and his body was full of life and health. और उसका शरीर जीवन और स्वास्थ्य से परिपूर्ण था। He never sinned, उसने कभी पाप नहीं किया and he was never sick. और ना वो कभी बीमार पड़ा। He lived a perfect life spiritually and physically. आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से उसने एक परिपूर्ण जीवन जिया। As we partake this communion, और जैसे हम इस प्रभु भोज में भाग लेंगे, examining our own lives, अपने जीवन को जांचते हुए let us walk in divine health. आइए हम अलौकिक स्वास्थ्य में चलें। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Everlasting Father, अनंत काल के पिता, we come to you in Jesus' name. यीशु के नाम से हम आपके सामने आते हैं। This bread represents our Savior's body. ये रोटी हमारे उद्धारकर्ता की देह को दर्शाती है This cup represents His precious blood. और ये प्याला उसके कीमती लहू को दर्शाता है। Blessed as we partake in a worthy manner. और जैसे हम योग्य रीति में इसमें हिस्सा लेंगे, प्रभु इस पर आशीष डालें And help us to walk in divine health. और सहायता करे कि हम अलौकिक स्वास्थ्य में चलें। Help us to walk in divine love हमें मदद करे कि हम अलौकिक प्रेम में चलें and in divine victory for the glory of God. और अलौकिक जय में हम चलें परमेश्वर की महिमा के लिए। I make this prayer in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. मैं ये प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अद्भुत नाम में करता हूँ। Amen. आमीन। Now you can partake this communion at your home. अब आप प्रभु भोज में हिस्सा ले सकते हैं अपने घरों में।